و ملی اسلامی بھائیوں، معصوم بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اس احکم الحاکمین کے لیے ہے جو ہم سب کا بلکہ پوری کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی الہی شریعت کے مطابق ہیں۔ حاضرین جمعہ، اس سے پہلے جو بیان ہوا تھا، گیا جو جمعہ، رشتہ داری کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ جن رشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، ان رشتوں کو نہیں توڑنا چاہیے، کاٹنا نہیں چاہیے، اور جو رشتہ داری اور تعلقات کو کاٹتا ہے، ختم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسا شخص پل صراط سے پار نہیں ہو پائے گا، کٹ کر اسی میں گر جائے گا۔ اسی طریقے سے رشتہ کو توڑنا، رشتہ کاٹنا، یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو گناہوں کی سزا ایسی ہے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اس میں یہ حدیث وارد ہے کہ دو گناہوں کی سزا ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے۔ ان دو گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے البغی وقطیعۃ الرحم، ایک تو ظلم و زیادتی اور دوسرا رشتہ توڑنا، رشتہ کاٹنا۔ رشتہ جو توڑتا ہے، کاٹتا ہے، تعلقات کو ختم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو سزا دے دیتا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں دیکھ لیجئے، آج کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے خاندان، کتنے قبیلے، کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جو جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنا تعلقات ختم کیا، جب انہوں نے رشتہ داری کو کاٹنا شروع کیا، تو آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، وہ خاندان، وہ قبیلہ، اس کا نام کوئی جانتا ہی نہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہی ایسی مار مارے کہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ تو رشتہ توڑنے والوں کو اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین سزا دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو گناہ کہ البغی، کہ ظلم و زیادتی، آج کا اصل جو ٹاپک ہے یہی ہے کہ ظلم و زیادتی کی سزا اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر دیتا ہے۔ ظلم ایک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جہاں ظلم کی بات آتی ہے، جہاں ظلم و زیادتی کی بات آتی ہے، تو اللہ رب العالمین بڑے سخت الفاظ قرآن حکیم کے اندر استعمال کیا ہے۔ اللہ نے ظالموں کے لیے کہیں کہا وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ رب العالمین ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو دنیا کے اندر ظلم کرتا ہے، قیامت کے دن تو اس کو سزا ملے گی، لیکن اس دنیا کے اندر بھی اس کو سزا مل جائے گی۔ کہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، جو ظلم کرتا ہے، ظالم کبھی سکسیس نہیں ہوتا ہے، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، ظالم کبھی ترقی اور عروج سے نہیں پہنچتا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین اس ظالم کے لیے فرماتا ہے إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ظالم کبھی ہدایت نہیں پاتا۔ تو اللہ رب العالمین کہیں پر فرماتا کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ ظالم کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو زیادتی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اور جس کو اللہ رب العالمین پسند نہ کرے۔ پھر میرے بھائیو، آج ہم اس دنیا کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ، صوم و صلاۃ کی جو پابندی کرتے ہیں، کس واسطے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے نزدیک محبوب بننے کے لیے، اللہ کے نزدیک اچھے بننے کے لیے۔ اور جب اللہ رب العالمین ہمیں پسند نہ کرے تو پھر ان اعمال کا کیا فائدہ؟ تو جرم ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر اس کی سزا دیتا ہے، اور اس بندے کو جو ظلم کرتا ہے، جو ظالم ہے، اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اور ظلم کا جو سپورٹر ہوتا ہے، ظلم کا جو تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، جو سپورٹر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی جہنم کی آگ تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کے ان الفاظ پر غور کیجیے۔ سپورٹر ایک تو ہوتا ہے کھلم کھلا کوئی سپورٹ کرتا ہے ظالم کا، لیکن اللہ رب العالمین یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ صرف یہ کہا کہ ظالم کی طرف جو جھکتا ہے، ظالم کا میلان، ظالم کی طرف جو اپنا میلان کرتا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا،
मेरे बंदो तुम जालिम की तरफ ना मैलान न करो, तुम जालिम की तरफ न झुको, जालिम का सपोर्ट न करो। वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। मेरे बंदो अगर तुम ऐसा करते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जहन्नम के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें भी जहन्नम की आग अपनी चपेट में ले लेगी। यानी पता चला कि जुल्म इतना बड़ा गुनाह है कि कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जहन्नम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जहन्नम में चले जाएंगे। आय हाय, ये जुल्म इतना बड़ा गुनाह है। आज हम में का हर शख्स, कोई छोटा जुल्म हो, बड़ा जुल्म हो, या बड़ा या कोई जमात जुल्म करे, या कोई हुकूमत जुल्म करे, या कोई खलीफा जुल्म करे, जुल्म चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी जुल्म हो, अल्लाह तबारक व तआला इस जुल्म की सजा इस दुनिया के अंदर तो देगा ही, आखिरत के अंदर भी इसकी सजा देगा। आखिरत में मिली सजा दुनिया में भी सजा मिले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नफ्स के ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है, अपने नफ्स के ऊपर, अपने आप पर जुल्म को हराम करार दिया है। अल्लाह खुद कहता है, या इबादी इन्नी, या इबादी इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी। अल्लाह कह रहा है मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है। अल्लाह जुल्म नहीं करता, अल्लाह किसी पर ज्यादती नहीं करता। जुल्म कौन करता है? जिसको दुनिया व माफिया की तलब होती है, जिसके अंदर हसद होता है, जिसके अंदर कीना होता है, वो जुल्म ज्यादती करता है। और मेरा रब तो इन सारी चीजों के पाक और साफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से हसद नहीं करता। अल्लाह को इस दुनिया व माफिया से क्या मतलब? अल्लाह को इस दुनिया व माफिया, दुनिया के अंदर जो कुछ है अल्लाह रब्बुल आलमीन को पैदा किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जुल्म नहीं करता। और फिर आगे फरमाता है, वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हारे लिए भी जुल्म को हराम कर दिया है। फला तुज़ालमू, तुम भी जुल्म न करना, किसी के ऊपर ज्यादती मत करना। और ये जुल्म इतना घिनौना जुल्म है कि जो शख्स किसी के ऊपर जुल्म करता है, अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के दिन ऐसे जालिम को अंधेरों में रखेगा। वो अंधेरों में और तारीकियों में पड़ा होगा, वो रोशनी के लिए तरसेगा। जरा सोचे, इस कयामत के दिन हर आदमी अपने अपने अमाल के हिसाब से उसको रोशनी हासिल होगी, और उसी रोशनी के जरिए से कल कयामत के दिन पुल सिरात को पार करेगा, पुल सिरात को उबूर करेगा। लेकिन अगर उसके पास रोशनी न हो तो कैसे पुल सिरात को पार करेगा? इसी पुल सिरात से कटकर वो गिर जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जुल्म करता है, अब्दुल ज़ुलमात यौमल क़ियामह, कयामत के दिन जो जुल्म ज्यादती करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वो तारीकियों में होगा, रोशनी के लिए तरसेगा, तड़पेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए तारीकी, वो अंधेरे में और तारीकी में पड़ा होगा। जुल्म इतना बड़ा गुनाह है, जुल्म इतना बड़ा, इतना घिनौना जुल्म है मेरे भाइयों। और जो जुल्म करता है ना, अल्लाह तबारक व तआला की जब पकड़ आती है ना, तो ऐसी वैसी कोई पकड़ नहीं आती। अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिम को छोड़ देता है, आजादी देता है, रस्सी को ढील करता है, देखना चाहता है कि कितना हद, किस हद तक जाना चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युमली लिज़्ज़ालिमी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मैं जालिम को आजादी ढील देता है, अपनी रस्सी को ढील कर देता है, वो जुल्म करता है, हत्ता इज़ा अख़ज़हू, यहाँ तक कि जब अल्लाह की पकड़ आती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उसको पकड़ता है, लम युफ़्लितहू, वो फिर छोड़ता नहीं है, वो किसी को छोड़ता नहीं है। जब जालिम को पकड़ता है तो जालिम को छोड़ता नहीं है। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा की तिलावत करते हैं, क्या पढ़ते हैं? वो कज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमा इन्ना अख़्ज़हू अलीमुन शदीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, इस तरीके से जब अल्लाह किसी जालिम को, किसी जालिम कौम को, किसी बस्ती को पकड़ता है तो इतना सख्त पकड़ता है कि लम युफ़्लित, तो फिर उसको छोड़ता नहीं है। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, जालिम को जब अल्लाह पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। मिसाल इसकी आप देखिए, पिछले जो कौमें गुजरी हुई है, कौमे नूह हो, कौमे सालेह हो, कौमे आद हो, कौमे समूद हो, आप उठा के देखिए, वो कौमे आद जो अपने आप को कहती थी मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। कौन है जो हमसे ज्यादा ताकतवर है? वो कौमे आद जिसके बारे में कुरान कहता है इरमज़ातिल इमाद, वो लंबे लंबे सुकून वाले थे, वो इतने ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे, वो पहाड़ों में तराश तराश कर घर बना दिया करते थे। वो इतने ताकतवर थे, एक भारी भरकम पत्थर अपने हाथों से घुसा देते, इधर से उधर कर देते।
अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम आद का जिक्र कर रहा है। जब वो कौम आद जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जुल्म ज़्यादती करने लगे, अल्लाह के नबियों के साथ जुल्म ज़्यादती करने लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ऐसा अजाब नाज़िल किया। वो कौम आद जो पत्थरों को उठाते थे, जो भारी भरकम पत्थर उठाते थे, उनको हवाओं के जरिए से हलाक कर दिया। हाय हाय, मेरे रब की जब पकड़ आती है तो ऐसी भी पकड़ आती है। जरा सोचे, अल्लाह चाहता तो जमीन को फाड़ भी देता, आसमान को फाड़ के अजाब नाज़िल कर देता, लेकिन उनको उनको अपने ताकत पर इतना गुरूर था, घमंड था, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके गुरूर को हवाओं के जरिए से इसको नाबूद कर दिया। जरा सोचे, फारसलना अलैहिम रिहन सरसरन आतिया सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम। अल्लाह ने कहा उन कौम आद को सबअ लयालिन व समानियत अय्याम, 7 रात और 8 दिन लगातार मुसलसल हवाओं के जरिए से हलाक कर दिया। तो अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, और जब अल्लाह पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। याद करो, देखो चीन को, वो चीन जहां औरतों पर बहुत ज्यादा जुल्म ज़्यादती हो रही थी, औरतों से निकाब को, हिजाब को, पर्दे को छीना जा रहा था, अल्लाह का अजाब ऐसा आया कि आज तक वो अपने चेहरे पर मास्क लगा के घूम रहे हैं। हाय हाय, कभी इससे पहले कभी आपने 2019 से पहले मास्क देखा था? आज ऐसा अजाब आया कि आज भी वो मास्क के जरिए से घूम रहे हैं। अल्लाह का जब अजाब आता है, अल्लाह की जब पकड़ आती है, इन्न बतश रब्बिका लशदीद, यकीनन रब की पकड़ बड़ी सख्त है। वो अमेरिका जो सुपर पावर अपने आप को कहता है, अमेरिका वो जिसके पास टेक्नोलॉजी और हर चीज उसके पास मुहैया है, उससे उसे वो अपने आप को खुद कहता है कि मैं सुपर पावर हूं, लेकिन अल्लाह का अजाब आया। हाय हाय, उस अमेरिका की तारीख उठाकर देखे जहां जुल्म ज़्यादती हुई, और खुसूसी तौर पर जहां मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती होती थी, उस अमेरिका का हाथ होता था, वो अमेरिका ताउन करता था, सपोर्टर था। अल्लाह तबारक व तआला ने आज उस अमेरिका को आग में झुलसा दिया, और ऐसी आग लगी, ऐसी आग लगी, तारीख में अभी वैसी आग नहीं लगी। आज दुनिया देखती है, आज यूट्यूब, सोशल मीडिया ऐसे ही रंगीन मचा हुआ है, और हर तरफ, हर जगह इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह अमेरिका अमेरिका अमेरिका। अल्लाह तबारक व तआला की ये पकड़ है। उस आग के लगने की चाहे वजह कोई भी बताए, चाहे सबब कोई और ही बताए, लेकिन हमारा ये अकीदा, हमारा ये ईमान है कि वो जालिम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पकड़ में ले लिया, अपनी चपेट में ले लिया। आज अमेरिका को अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब नाजिल हो गया। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब पकड़ आती है, इन्ना अखज़हु अलीमुन शदीद, आज भी वो आग जल रही है, वो बुझ नहीं रही है। लम युफ्लित हो, जब मेरा रब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। आज वो खंडरात, आज वो महल्लात, वो मकानात, जो आलीशान बिल्डिंगें थी, जिस पर करोड़ों रुपया खर्च करके वो बनाए थे, वो टीवी एट्रैक्स, जहां फिल्मों की दुनिया थी, जहां पर बड़े बड़े एक्ट्रेस, बड़े बड़े अदाकार थे, जो फिल्म स्टार थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके घरों को ऐसा खंडरात में बदल दिया कि तप में रेत हो गया, पड़ती जमीन में बदल दिया उनके घरों को। आए है वही एक्टर जो बड़ा मशहूर एक्टर है, बड़ा मशहूर अदाकार है फिल्मी दुनिया का, उसने कहा था जब फिलिस्तीन के ऊपर, जब अर्द मुकद्दस के ऊपर बमबारी हो रही थी, जब उनके ऊपर बम छोड़े जा रहे थे, औरतें बेवा हो रही थी, यतीम बच्चे हो रहे थे, तो उसने कहा था बड़ा अच्छा है, वो इस सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जश्न मना रहा था। आज उसका घर जब जल रहा है तो अपने हाथों को सर पे रखा हुआ है, उसका चेहरा, उसका मुंह खुला का खुला है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बड़ी सख्त है। जालिम को कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन छोड़ता नहीं, इसलिए जुल्म करने से बचो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब कहा, अल-बग़ी व उक़ूक़ुल वालिदैन, 2 गुनाहों की सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर ही दे देता है। एक तो जुल्म की सजा, अगर आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म ज़्यादती करते हैं, आप जुल्म करते हैं, तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सजा दुनिया के अंदर दे देता है। ऐसा नहीं कि दुनिया में सजा मिली तो आखिरत में सजा नहीं मिलेगी, दुनिया में भी सजा मिलेगी जालिम को, और आखिरत में भी उसकी सजा मिलेगी। जुल्म इतना खतरनाक, इतना घिनौना, इतना जबरदस्त जुर्म है कि अगर कोई जुल्म करता है तो अल्लाह दोनों जगह सजा देता है। इसी तरीके से दूसरी गुनाह वो उक़ूक़ुल वालिदैन, वालिदैन का नाफरमान, अगर कोई वालिदैन के साथ जुल्म ज़्यादती करता है और वो बुढ़ापे की हालत में वो उससे कतई ताल्लुक इख्तियार करता है, जब उनकी इनकम ज्यादा हो जाती है, पैसा कमाने लगता है, ऐसे नाजुक हालात में अपने माँ बाप को अलग करता है, अपने माँ बाप को दूर करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे भी दुनिया के अंदर ही पकड़ लेता है। आखिरत में जो पकड़ होगी इस दुनिया के अंदर भी उसको सजा मिल जाती है। तो जुल्म बहुत खतरनाक जुर्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोनों की सजा इस दुनिया के अंदर ही मिल जाती है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म के ताल्लुक से लोगों से कहा, वसीयत की कि लोग जुल्म से बचो। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को
जब यमन की तरफ रवाना करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको चंद नसीहतें करते हैं, वसीयत करते हैं। उसमें से एक वसीयत ये है, वत्तक़ि दावतल मज़लूम, ऐ मुआज़, तुम मजलूम की बद्दुआ से बचो, फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, इसलिए कि मजलूम जब उसकी जबान से बद्दुआ निकलती है, जब जुल्म किया जाता है, उसकी जबान से आह निकलती है, तो उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा, कोई हिजाब नहीं होता, कोई आड़ नहीं होता। डायरेक्ट मजलूम की दुआ अल्लाह तबारक व तआला आसमान से टकराती, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सुन लेता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की हदीस है, तिरमिजी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 दुआ अल्लाह तबारक व तआला लौटाता नहीं है, रद्द नहीं करता, 3 दुआ को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। वो 3 दुआ कौन सी है? सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुम, ये 3 दुआओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। उसमें से 3 दुआ क्या है? अस्साइमु हीना युफ्तिरु, वो रोजेदार जब इफ्तारी के टाइम बैठता है, इफ्तारी के टाइम, इफ्तारी के वक्त वो दुआ करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, तो अल्लाह उसकी दुआओं को एक्सेप्ट करता है, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करता है। इसी तरीके से अल इमाम आदिल, और ऐसा इमाम जो लोगों में अदल करता है, लोगों में इंसाफ करता है, इंसान इस इंसाफ के साथ मामला करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसाफ करने वाले की दुआ को भी कबूल करता है। व दावतुल मजलूम, और तीसरा वो शख्स जब मजलूम दुआ करता है, जब मजलूम ये दुआ करता है, अल्लाह मेरे ऊपर फला ने बड़ा जुल्म किया, अल्लाह मेरी जमीन को, मेरे पैसे को, मेरे प्रॉपर्टी को किसी ने हड़प लिया, किसी ने नाहक तरीके से ले लिया, जब वो बद्दुआ करता है तो उसकी बद्दुआ को आसमान खोल दिया जाता है। यरफ़अहुल्लाहु फ़ौक़ल जनाम, अल्लाह कहता है उसकी बद्दुआ को आसमान पर उठा लिया जाता है और बादलों के ऊपर उसकी दुआ को चढ़ा दिया जाता है। वतुफ़त्तहु अबवाबुस समा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान के दरवाजों को खोल देता है, और जब वो मजलूम बद्दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है व इज्जती, मेरे जलाल, मेरे इज्जत और किबरियाई की कसम, मेरे जलाल की कसम, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे मजलूम बंदे, लअनसुरन्नका, जब मजलूम की जबान से बद्दुआ निकलती है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मैं जरूर भी जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। मजलूम की जबान से जब बद्दुआ निकलती है, सोशल मीडिया उठाओ मेरे नौजवान साथियों, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील देखने वालों, जरा उन वाकयात को देखो, फिलिस्तीन के वाकयात को देखो। वो मासूम बच्चा जो रो रहा था, जो ये कह रहा था मैं अपने रब से जाकर शिकायत करूंगा, उसका फोटो भी वायरल हुआ, उसके ऊपर तहरीरें भी लिखी गई, उसकी वीडियो भी वायरल हुई। वो बच्चा कह रहा है मैं अपने रब से शिकायत करूंगा। हाय हाय, उस बच्चे की आवाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन सुन लेता है। लअनसुरन्नका, अल्लाह कह रहा है मैं जरूर भी जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। वलो बादही, थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लग सकता है, लेकिन अल्लाह की मदद जरूर आएगी। अगर किसी के ऊपर जुल्म किया जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मजलूम की बद्दुआ को सुनता है, आसमान को खोल देता है, आसमान से जाके आवाज उसकी टकराती है, जब उसकी जबान की आह निकलती है। मेरे भाइयों, ये जुल्म इतना बड़ा जुर्म है, इतना घिनौना जुर्म है। हजरत अली बिन अबी तालिब इसी जुल्म के ताल्लुक से एक शेर कहते हैं, ला तज़लिमन इज़ा मा कुंत मुक़्तदिरन, कि लोगों जब तुझे इक़्तिदार मिल जाए, जब तेरे पास ताकत आ जाए, कुव्वत आ जाए, तो तुम लोगों के ऊपर जुल्म न करना, क्योंकि ये जुल्म बहुत बुरा है। नद में एक दिन न एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा, शर्मिंदगी महसूस करनी होगी। और जुल्म करने वाला रातों को अपने बिस्तर पे आराम से सो जाता है, सुकून की नींद लेता है, लेकिन जिसके ऊपर जुल्म किया गया है वो मजलूम यदऊका अलैका, वो मजलूम अपने रब से दुआएं करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन लन तनिम, अल्लाह सोने वाला नहीं, अल्लाह सोने से बेनियाज है। अल्लाह तबारक व तआला रातों को उसकी बद्दुआ को कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, डायरेक्ट सुनता है। मेरे भाइयों, जुल्म से बचो। अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म ज्यादती कर रहा है तो हमें इससे बचना चाहिए, और कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा, किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। कयामत के दिन मीजान रखा जाएगा, सबके साथ फैसला होगा, कौन किसके साथ क्या किया, कौन कितनी नेकियां किया, कौन कितना अमल किया, सबके साथ फैसला होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है, वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह,
फला तुज़्लम नफ्सुन शैआ। कयामत का दिन होगा, मीजान रखा जाएगा, हाय हाय नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मीजान रखा जाएगा। अल्लाह कह रहा है फला तुज़्लम नफ्सुन शैआ, उस दिन किसी नफ्स के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, कोई ज्यादती नहीं किया जाएगा। व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन अतैना बिहा, अल्लाह कह रहा है जर्रा बराबर भी अगर कोई नेकी का काम किया होगा तो अतैना बिहा, उसको भी लाया जाएगा। जर्रा बराबर अगर कोई गुनाह का काम किया होगा, अतैना बिहा, उसको भी लाया जाएगा। अल्लाह कह रहा है वमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा, अगर जर्रा बराबर हमने नेकी की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी कल कयामत के दिन दिखाएगा। अगर जर्रा बराबर हमने बुराई की तो कल कयामत के दिन उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सामने ला देगा। वकफा बिना हासिबीन, अल्लाह कहेगा आज के दिन हिसाब लेने वाला मैं हूँ। जरा सोचो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हिसाब लेगा, हाय हाय फिर क्या होगा। अल्लाह जिससे क्यों और कब सवाल कर देगा, फिर तो उसकी पार घाट बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर वो पार नहीं हो पाएगा। अल्लाह जिससे कब और क्यों कह देगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ये जुल्म इतना बड़ा गुनाह है कि कल कयामत के दिन किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं होगी। बराबर बराबर जो करके आया है इस दुनिया के अंदर उसको उसका हिसाब देना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला करेगा, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला करेगा। और हजरत अल्लामा इब्न तैमिया ने क्या नक्शा खींचा है जुल्म के ताल्लुक से, जरा इस बात को अपने माइंड में सेट करो। अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं इन्नल्लाह यंसुरु दौलतल आदिलत, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कौम ऐसी बस्ती को तरक्की देता है, बुलंदी और उरूज करता है। क्यों? उसके अंदर अदल और इंसाफ है। इंसाफ करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला तरक्की देता है, चाहे वो कोई कौम हो, कोई खलीफा हो, कोई जमात हो, अगर इंसाफ करती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको तरक्की और बुलंदी देता है। इसी तरीके से वह इनकानत काफिरतन, वो इंसाफ करने वाला अगरचे काफिर हो। अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि इंसाफ करने वाला, इंसानियत के दरमियान इंसाफ करने वाला अगर काफिर हो तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दुनिया में तरक्की देता है। वला यंसुरद दौलता, वला यंसुरद दौलता जालिमा, और ऐसा बादशाह, ऐसी हुकूमत करने वाला जो लोगों के ऊपर जुल्म करता है, इंसाफ नहीं करता है, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मदद नहीं करता, उसका ताउन नहीं करता। व इन कानत मुमिनतन, अगर वो मुसलमान हो। मेरे भाइयों कितनी पॉइंट की बात करते हैं अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि अगर कोई जुल्म करता है, अगर वो मुसलमान है, ज्यादती करता है, काफिर के साथ ज्यादती करे या मुसलमान के साथ ज्यादती करे, अल्लाह उसकी मदद नहीं करता, अल्लाह उसका ताउन नहीं करता। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तुअद्दुन हुकूक, कि तुम लोगों के हुकूक दे दिया करो। जो लोग हकदार हैं जिस चीज के, उसके हुकूक इस दुनिया के अंदर ही अदा कर दिया करो, वरना कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उसका हक देना पड़ेगा। और कल कयामत के दिन आपके पास क्या होगा? दिनार होगा, दिरहम होगा, पैसा होगा। जिस हुकूमत और जिस ओहदे का आपको घमंड है और तकब्बुर है, कल कयामत के दिन क्या इसका तकब्बुर, इसका घमंड होगा? कल कयामत के दिन क्या आपकी दुकान होगी, क्या आपकी शॉप होगी? कल कयामत के दिन क्या आपके जेब जो नोट है, दुनिया के अंदर कोई गुनाह, कोई जुर्म करने के बाद हम प्रशासन के पास जाते हैं तो कुछ पैसे देकर रिहा हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। क्या कल कयामत के दिन ये पैसा हमारे पास होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जिस दिन न दिरहम होगा न दिनार होगा। मेरे भाइयों उस दिन होगा तो अगर आपके पास क्या होगा? बची खोटी जो कुछ नेकियां होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जालिम को, यानी जुल्म करने वाला, जो जुल्म करने वाला होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मजलूम को, जालिम के पास जो कुछ होगा, नेकियां होगी, तो उसको मजलूम को दे दी जाएगी। अगर मजलूम जालिम के पास नेकी नहीं होगी और सिर्फ वो भी गुनाहगार होगा और मजलूम के पास भी कुछ थोड़ा बहुत गुनाह होगी, तो मजलूम की गुनाह को जालिम को दे दी जाएगी। हाय अल्लाह, उस मजलूम को पाक कर दिया जाएगा जिसके ऊपर जुल्म ज्यादती की गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें जुल्म से बचाए। जुल्म इतना बड़ा, इतना घिनौना है। और याद रखें जो दुनिया के अंदर जुल्म करता है वो ये सोचता है कि मेरा रब देखता नहीं, मेरा रब जानता नहीं। यकीनन जालिम को अल्लाह तबारक व तआला ढील देता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, ओ लोगों तुम ये गुमान करते हो, ये सोचते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों को देखता नहीं है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जुल्म करता है उसको देखता नहीं, उसको जानता नहीं। इन्नमा युअख्खिरुहुम यौमिन तशख्खसु फीहिल अबसार, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हम तो जालिम को ढील देते हैं, आजादी देते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या करता है। लियौमिन तशख्खसु फीहिल अबसार, उस दिन के लिए ढील दे रहा है जिस दिन उनकी निगाहें ठप पड़ जाएंगी, उस दिन के लिए, कयामत के दिन तक के लिए ढील दे रहा है। और वो जालिम कल कयामत के दिन मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यरतद्दु इलैहिम तर्फुहुम व अफ़इदतुहुम हवा, कयामत का दिन जब होगा वो जालिम जो दुनिया के अंदर जुल्म किया करता था वो दौड़ेगा अपने सरों को उठाकर, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और खोजेगा कि मेरा नबी कहाँ है। मेरे भाइयों जरा सोचे, कयामत के दिन जिस दिन कोई किसी के काम आने वाला नहीं है, उस दिन जालिम की क्या कैफियत होगी, क्या हालत होगी। जालिम डरा हुआ होगा। अरे जालिम तो जालिम, दुनिया के अंदर जितने लोग हैं सारे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि कयामत के दिन वो लोग डरे हुए होंगे, थर थर कांप रहे होंगे। और इसी तरीके से खुसूसी तौर पर मुजरिमीन का जिक्र कर रहा है कि जो मुजरिम होंगे, गुनाहगार होंगे, वो कयामत के दिन उनकी कैफियत क्या होगी, जो जुल्म करते हैं उनकी कैफियत क्या होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, आप मुजरिम को देखेंगे कयामत के दिन, उनकी निगाहें झुकी होंगी, वो थर थर कांप रहे होंगे। वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, उनके सर झुके होंगे इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास। और वो क्या कहेंगे, इदिल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिना, वो कहेंगे अल्लाह हमने देख लिया, अल्लाह हमने अपने कानों से सुन लिया। अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, खुतबा आए, वाइज आए, नसीहत करने वाले आए, वो अल्लाह के अज़ाबात से डरा रहे हैं। आज अमेरिका में अज़ाब आया, कल चीन में अज़ाब आया, फिर अज़ाबात को हम देखकर उसके बावजूद भी इबरत नहीं हासिल करते हैं, एक अल्लाह की तरफ नहीं आते, सौम सलात की पाबंदी नहीं करते। वो कल कयामत के दिन कहेंगे अल्लाह हमने अपनी आंखों से देख लिया, अल्लाह हमने अपने कानों से सुन लिया, अल्लाह जो तेरे अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आकर डराया करते थे, अल्लाह हम नहीं करते थे, उसको झुठलाया करते थे, लेकिन अल्लाह उसकी आवाज आज हमारे कानों में सुनाई दे रही है। अल्लाह वो खुतबा जो वाइज थे, जो जन्नत और जहन्नम का जिक्र करके हमें डराया करते थे, अल्लाह आज उनकी आवाज हमारे कानों में आ रही है। अल्लाह हमने सुन लिया, हमने देख लिया, अब सरना व समिअना फरजिना, अल्लाह तू हमें इस दुनिया के अंदर दोबारा लौटा दे। अल्लाह कहेगा अब नहीं, अब नहीं। वो लौटने की तमन्ना और ख्वाहिश जाहिर करेगा कि अल्लाह हमें दुनिया के अंदर लौटा दे। मेरे भाइयों उस दिन के आने से पहले पहले, जिस दिन हमारी ये ख्वाहिश और तमन्ना हो कि हम दुनिया के अंदर चले जाए, उससे पहले पहले हम अपने आप को इस कदर तैयार कर ले कि वो दिन देखना ही न पड़े, उस दिन कहना ही न पड़े कि फरजिना, अल्लाह तू हमें लौटा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ कहा और सुना जा रहा है, अल्लाह को हमें कहने और सुनने के साथ साथ उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह जो हमें जुल्म से, जैसे घिनौने जुल्म से बचने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जुल्म छोटा हो या बड़ा हो, अल्लाह तो हमें हर जुल्म से बचने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हुकूकुल इबाद की कोताही से बचने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। अल्लाह तो हमें अपनी रहमत से नवाज दे। अल्लाह तो हमारी गुनाहों को माफ कर दे, पानी से धो दे, बर्फ से धो दे, ओले से धो दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में जो अज़ाबात आ रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन अज़ाबों को देखकर हमें इबरत हासिल करने की तौफीक नसीब फरमा, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे पहले पहले के हमारे ऊपर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सौम सलात की पाबंदी करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन गुनाहों के जरिए से हम पर मुसीबतें और परेशानियां आ रही हैं,